प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको जय मसीह की कहता हूँ। For our meditation, let's look into the portions of the Bible, Proverbs chapter 23, और आराधना के लिए नीति वचन उसका 23 chapter 3, verse 25 and 26. आराधना के लिए नीति वचन उसका 3 और उसका 25 वचन। नीति वचन Proverbs chapter 3 verses 25। Chapter 3, verse 25 and 26. नीति वचन उसका 3 उसका 25 और 26 वचन हम मिलकर पढ़ लेते हैं। Let's read it all together. मिलकर पढ़ेंगे। Be not afraid of अचानक sudden आने fear, वाले भय neither से न of the डरना, desolation of और the जब wicked when it दुष्टों cometh. पर विपत्ति आ For पड़े the Lord तब shall ना be घबराना, thy क्योंकि confidence यहोवा and shall तुझे keep thy foot सहारा दिया from करेगा being और taken. तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। Let's read verse 26 all और together again. 26 वचन फिर से एक बार मिलकर पढ़ेंगे। Very slowly, very meaningfully. और एक मिनट Yeah. बहुत ही धीरे से पढ़ेंगे, समझदारी के साथ अर्थपूर्ण वचन पढ़ेंगे। Because you have to keep yourself in the Word of God, that's when you'll understand the great essence और of जब the तक आप वचन में अपने आप को देखेंगे नहीं, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। Or else it will just be a print on the Bible and you'll just read it and it will go. और क्या होगा यदि आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो बाइबल पढ़ा जैसा हो जाएगा और निकल जाएगा। And moreover, we are entering into the presence of God to worship the Lord. ये हम वचन इसलिए पढ़ते हैं प्रियो, ताकि हम वचन पढ़कर प्रभु की उपस्थिति में हम प्रवेश कर And सकें। there is no use of you coming here into the assembly यदि and not knowing whom you are आवाज- worshiping. एक मिनट, थोड़ा आवाज सेट करा। Is it fine? Is it fine? Okay. Is it fine? Not needed. Okay. Sure. बता? वारवार नहीं। चेक। हाँ। Yeah. So it's there is no use of you being here if you are not worshiping the Lord, Not worship. worshiping the Lord. हाँ, यहाँ यदि आप आराधना नहीं करेंगे तो याद रखिए यहाँ पर आना कोई भी काम का नहीं है। Doesn't matter you have to lift your voice up during the worship time. It can be also self worship. और हो सकता है गीतों के समय में आपने गीत गाया है, वो भी एक प्रकार का आराधना ही है। Let's read this verse again meaningfully. फिर से एक बार इसी वचन को अर्थपूर्ण हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 3 verse 26. नीति वचन 3 और 26 वचन। For the Lord shall be क्योंकि thy confidence and यहोवा shall तुझे keep सहारा thy दिया foot करेगा from being taken. और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। The Lord is saying, be not afraid of sudden fear. परमेश्वर कहता है अचानक आने वाले भय से न डरना। For the Lord shall be thy confidence. जब और परमेश्वर और Yeah, confidence. In English, it is a very good word that we have used. I mean, that we can see here. But in Hindi, I think it is भरोसा। bharosa. हाँ। But actual meaning of confidence is having faith on someone or trusting someone. हाँ, निश्चयता का मतलब है भरोसा, किसी के ऊपर आधारित रहना। So that is what we will be meditating upon today. इसी के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। How God has become our confidence. और कैसे परमेश्वर हमारा भरोसा बन गया। And if you see the affairs which are going throughout the world, और जैसे हम देख रहे हैं कि संसार में जो बातें घटनाएं घट रही है, whether it be the world wars, rumors of how things are changing throughout और the कैसे world. संसार की बातें संसार की जो अफवाहें हैं आते हुए कैसे बदलती जा रही है। And seeing AI is occupying human intelligence. और कैसे AI नाम का जो यंत्र है कैसे मनुष्य को वो पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। And there are a lot of layoffs happening around throughout many companies throughout the world. और ऐसी सारी बातें जो है बहुत सारी कंपनियों में चल रहा है। And these were the things that I have in my mind last week also. और ये बातें मेरे
पिछले हफ्ते में भी थी। And I kept on sharing with brother as well that I'm going through a lot. और पिछले दिनों में मैं भाई से बात कर रहा था, मैं इन सारी बातों से, परेशानी से गुजर रहा हूँ। Because the colleague that I have been working with so sincerely, so with great intimacy, और she's no more in the company. और जो मैं मेरे कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक और जिम्मेदारी से मैं वो काम कर रहा हूँ जिसकी वो जरूरत रखते हैं। All of a sudden things change. मगर अचानक सा सब कुछ बदल गया। All of a sudden, when I use sudden, word sudden in English, it is basically used more toward the negative aspect. और अचानक ये शब्द जो है, जो बातों का आपने सोचा नहीं वो बातें अचानक आ जाना। If you read Thessalonians chapter, 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, you will see the difference very carefully. यदि आप पहला थेसलोनी और दूसरा थेसलोनी पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन बातों को पाया जाता है। Suddenly Jesus Christ will come as a thief to them. अचानक प्रभु यीशु मसीह एक चोर के नहीं आएगा करके लिखा But है। to us who are believing in Christ, और जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, it is said that in a twinkling of an eye. और एक पलक झपकते ही वो आएगा। You see the difference here? देखिए, ध्यान देकर सुनिए, आप इसको समझ पा रहे क्या? All of a sudden, अचानक सा सब कुछ, things will change to the unbelieving world. जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए अचानक सा सब बदल जाएगा। But who is trusting the Lord, मगर जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, things will change in a different way. मगर उनके लिए सब बातें अलग रीति से बदल Though जाएगी। it is hard for us to absorb at that moment, हो सकता है उस समय में हमको ये बातें पछाने या उस बातों को स्वीकार करने के लिए कठिन होगी। because our confidence and our trust is on the Lord, we will trust Him more and more. और क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसी पर भरोसा रखेंगे। We will see three people before we enter into the prayer. हम आराधना में जाने से पहले तीन लोगों के I'll बारे में just give देखेंगे। you a gist of all these three people whom we will be meditating और वो upon. 3 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा जिसके ऊपर हम मनन करेंगे। One is Moses पहला है मूसा and the people of Israel through Jeremiah, और इर्मिया, and the very Job, as we know how crucial his life was. और तीसरा अयूब। Yeah, let's look to the Lord in prayer. आइए सहायता के लिए प्रार्थना में जाएंगे। Loving Lord, Heavenly Father, once again thank and praise the Lord for the time that He came to us, Lord, unworthy and Lord with unworthy lips. But thank the Lord for the facility and the privilege that You have given to all of us, that we have come here as one church, as one body, Lord. Though there are a lot of things going on in our mind, in our life, Lord, help us to see You who You are, Lord, so that Lord we may have confidence and keep our confidence in You, and we worship You as we are. Oh Lord, we cannot hide behind any curtain because You know where we are and how we are. Standing where we are and kneeling where we are, oh Lord, we look toward You. Help us to see You as You are, so that Lord we may worship You, opening our hearts completely. Through sufferings, through unpredicted world, oh Lord, we look upon You. Grant us the mercy to even me and to even brother as he will be translating. Oh Lord, help us open our mouths wide open so that Lord, You will be filling our mouths and our hearts with Thy words, so that Lord, we may utter those things which are appropriate in Your sight. At time we and praise, Lord, coming even the flock before us, oh Lord, we are not that worthy to stand before them, but Lord, You only lead them, so that Lord, together we all may worship Thee sincerely. At time then I pray, Lord, this small prayer, knowing that You have heard my prayer. In Jesus' precious name I pray. Amen. लोग थोड़ा कम है, थोड़ा आराम से बैठिए, बहुत कंजस्टेड होकर मत बैठिए। तो देखो वहां पर थोड़ा आराम से रहिए, आराम से जगह दीजिए एक दूसरे को थोड़ा। हाँ ब्रदर आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए और जगह दीजिए एक दूसरे को बैठने के लिए। Let's turn our Bibles to Isaiah chapter और 41. एक और बात, यदि कोई नए सिरे से आया है, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। एक तो मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, या तो मोबाइल के साथ आप बाहर जा सकते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। दूसरा, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, छोटे बच्चे को लेकर कोई डिस्टर्ब मत हो जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। आइए Isaiah, let's turn our Bibles to Isaiah chapter 41, verse यशायाह नबी की 10. किताब 41 अध्याय और 10 वचन। This is the very verse that I'll be reading every day because it is on my bike's keychain.
और ये मैं प्रतिदिन इस वचन को मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये वचन की मुझे बहुत जरूरत है Every और ये time- मैं चाहता हूँ। Every time I go out, it gives me a great warmth that और God is with जब me. जब मैं ये पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही हियाव देता है प्रियो। Let's read that verse meaningfully. आइए बहुत ही अर्थपूर्ण इसको पढ़ेंगे। Isaiah chapter 41 verse 10. यशायाह 41 अध्याय और 10 वचन। Fear thou not, for I am with thee. मत डर क्योंकि मैं, सब मिलकर पढ़ेंगे, Let's read बाइबल it खोलिए, सब मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह 41 अध्याय 10 वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। Fear not, for I am with thee. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। We have read a beautiful verse just before that. बहुत ही सुंदर वचन हमने जो पढ़े हैं, मगर उससे पहले I, the God who is the creator, am your confidence. और हमने उससे पहले हमने क्या पढ़ा? मैं परमेश्वर हूँ और मैं तेरा भरोसा हूँ। Wherever you are in your life, जहाँ कहीं भी तू अपने जीवन में हो, see from that perspective and you'll get great courage in Him. और उस परिस्थिति में से आप उसे देखिए और देखिए कैसे आप हियाव पाते हैं। And automatically you will see the other world on the other side, and you will see your life in the pathway of God. जब आप इस प्रकार प्रभु पर भरोसा रखकर उसकी ओर ताकते हैं तो संसार को एक जगह पर और आप प्रभु के मार्गों पर पाए जाते हैं। And these are the three instances that we will be meditating upon, how God is how we can have our God confident toward us. और इस बातों से हम ये देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा भरोसा है, How He has become a confidence. और कैसा वो मेरा और आपका भरोसा बन We गया। will see Moses हम in Exodus chapter 4. हम मूसा की ओर देखते हैं, निर्गमन की किताब 4 अध्याय, Exodus chapter 4 verse 1 2 निर्गमन and की 3. किताब 4 अध्याय वर्सेस 1 2 and 3. निर्गमन की किताब 4 अध्याय 1 2 और 3 वचन Let's read it. पढ़ते हैं, सब मिलकर पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 4 अध्याय Verse 1 1 2 2 और 3 वचन। तब मूसा ने उत्तर Moses दिया, वे answered मेरा and said, विश्वास Behold, नहीं करेंगे और न they मेरी will not सुनेंगे, वरन believe कहेंगे me. यहोवा Nor ने hearken तुझको unto my दर्शन नहीं voice, दिया। but they will say, The Lord hath यहोवा not ने appeared उससे unto कहा, तेरे हाथ में वो क्या And the है? Lord said unto वह him, बोला, लाठी। What is उसने that कहा, in उसे thy भूमि पर डाल And दे। he said, A rock. तब उसने And he उसे said, भूमि Cast पर it डाल दिया। on the ground. तब वह सर्प And he बन गई cast it on और the मूसा ground, उसके and it सामने became से serpent, भागा। and Moses fled from before. We know how Moses was chosen to deliver the people of और Israel. कैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुन लिया। And we know how the Lord has brought him to the focus through the medium of a bush being burned. और कैसे परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ के ऊपर झाड़ियों के उस जलते हुए अग्नि के द्वारा आकर्षित किया। And as I always say, he knows how to deal with his servants. और परमेश्वर जानता है कि अपने सेवक के साथ कैसे वो वार्तालाप करे, कैसा व्यवहार करे। It may not be the same as how he is working in my life, in brother's life as well. हो सकता है It कि will be drastically different. हो सकता है कि मूसा के जीवन में जैसे उसने कार्य किया, वैसे इस भाई के जीवन में, मेरे जीवन में अलग अलग रीति से वो काम करता He है। knows how to draw his people toward him, मगर प्रभु जानता है कि वो अपने लोगों को कैसे नजदीक लेना है, so that he will reveal that the Lord himself is the confidence toward his people. ताकि परमेश्वर अपने लोगों को वो दिखा सके कि कैसा मैं तेरा भरोसा हूँ। And we know this history of how the Lord has used Moses. और कैसे हम इतिहास को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। And as Moses was saying, Lord, how can I go there, and how can people of Israel believe in me? और वो मूसा कह रहा है, परमेश्वर ये कैसा हो सकता है कि मैं उनके पास जाऊंगा और वो मुझ पर भरोसा What करेंगे। did we read in the first verse, Proverbs chapter 3 verse 26? और नीति वचन 3 अध्याय 26 वचन में हमने क्या पढ़ा Be था not प्रियो? afraid, I am thy confidence. और तू मत डर क्योंकि मैं तेरा भरोसा हूँ। Because many times when we see sudden things change, we tend to confuse ourselves, and we become very panic. और कई बार ऐसे परिस्थितियों में आ जाते हैं, हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं
और संदेह से भर जाते हैं और बहुत ही हम खुद को दुखमय परिस्थिति में पाते हैं। As Moses was uttering those words, मूसा इस बातों को बोल ही रहा था, and God said, "What is there in your hand?" परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है? It is just a rod. उसने कहा लाठी है। And the Lord said, "Cast it." तो परमेश्वर ने कहा उसको नीचे फेंक दे। And what happened? We know. और क्या हुआ हम जानते हैं। The rod turned to a serpent. और जो लाठी थी उसका सांप बन गया। And what did Moses do? Was he standing there? और मूसा ये सब देखने के बाद उधर ही रुका रहा क्या? He fled from that serpent. 3 वचन में लिखा है मूसा उसके सामने से भागा। That is your situation and my situation और when कई terror बार- happens all of a sudden. कई बार आपकी और मेरी परिस्थिति ऐसी ही होती है जब अचानक ऐसे संकट आ जाते हैं। Even when God allows that to happen through our life, we'll be in a trouble thinking what is happening before me. और कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आ जाती है और हम कहते हैं प्रभु ऐसी परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई है? We see that Moses fled. मगर हम देखते हैं कि मूसा उसको देखते ही भागा। But what did the Lord say? मगर परमेश्वर ने वहां पर क्या Verse कहा? 4. 4 वचन। Let's read it all together. आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 3 अध्याय और उसका 4 वचन। And the Lord said तब यहोवा ने unto मूसा से Moses, कहा "Put हाथ forth thy बढ़ाकर hand and उसकी take पूंछ it by पकड़ the ले tail." And ताकि he वे put लोग forth his विश्वास hand करें and caught कि it, तुम्हारे and पितरों के it परमेश्वर became अर्थात a अब्राहम rod के and परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा के ने तुझे दर्शन दिया Moses है। kept his confidence on God. मूसा ने अपना भरोसा परमेश्वर की ओर परमेश्वर में पाया। If I was there in Moses' place, यदि मैं मूसा के जगह पर होता I would have gone home. मैं तो भागते हुए घर ही पहुंच जाता। And as you know, like in the past, the animals were more aggressive. और हम than देखते हैं कि जंगल में जो प्राणी रहते हैं, जंगली प्राणी बहुत ही जंगली रहते हैं, खतरनाक रहते हैं। And I don't know what serpent it was. Might be a cobra. अब हमको नहीं पता कि उसकी लाठी का सांप बन गया। अब सांप कौन सा प्रकार का सांप है मालूम नहीं। Even क्या वो नाग है, कोबरा है, हमको नहीं पता। Even if the Lord says, "Hold by the tail," I would have gone home. और परमेश्वर यदि बोलता उसके जगह पर आप और मैं रहता, या तो मैं होता और बोलता उसकी पूंछ को पकड़, तो मैं पूंछ को पकड़ने के बजाय घर भाग जाता। That is the way humans are. इस प्रकार मनुष्य जीता है। And Moses did fled from that serpent. मगर मूसा ने जब देखा तो भाग गया। But the God's presence, he was able to see the burning bush on the other side, and मगर he was दूसरी- able to listen to the voice of God, and he was able to hold by the tail of the serpent. एक जगह पर मूसा ने देखा उस झाड़ी जलती जा रही है, वहां पर आग है परमेश्वर का। एक जगह पर परमेश्वर की वाणी है और एक जगह पर सांप है जिसको पकड़ना है। Is God your confidence and my confidence, so that यही we can परमेश्वर- worship Him? यही परमेश्वर हमारा भरोसा का प्रभु है, Has God been your confidence जिसकी in हम your आराधना life? करने के लिए आए हैं। Has God been your confidence in your life? क्या इस प्रकार का भरोसा प्रभु ने आपको दिया है? In the recent past or in your past life? आपके पिछले दिनों में जाकर देखिए, क्या प्रभु आपका भरोसा नहीं बना? Let's look into the other portion. दूसरी बातों को देखें। Jeremiah यिर्मयाह नबी की किताब, chapter 43, यिर्मयाह नबी की किताब 43 अध्याय, last verse. यिर्मयाह 43 अध्याय और आखिरी का वचन। यिर्मयाह 43 अध्याय यिर्मयाह 43 अध्याय आणि शेवटचं वचन, आखरी का वचन। Uh, Sorry, I think I might missed that word. But it says somewhere in Jeremiah twice that I am the God who will correct thee. मैं वो परमेश्वर हूं जिसे मैं तुझे ठीक ठाक करता हूं। I will punish thee for because you have become my servant. तू मेरा Yeah, 46 last verse. और 40 का आखिरी का वचन। Yes. Yes. यिर्मयाह नबी की किताब 46 अध्याय 46
and last Yeah. यानी 46 शेवट last से वचन verse. सब मिलकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह 40 अध्याय 28 वचन। हे मेरे दास Fear thou याकूब, not, यहोवा O की ये Jacob, वाणी my है servant, कि तू saith मत the डर, Lord, for क्योंकि I मैं am तेरे with साथ thee. हूँ, For और I यद्यपि will मैंने उन make a सब full end जातियों of का all the nations अंत whether कर I डालूंगा, have उनमें driven thee. मैंने But I तुझे will not जबरन make a निकाल full दिया end है, of thee, तो भी but correct तेरा अंत thee न in करूंगा। measure. मैं Yet तेरी will I ताड़ना not leave विचार करके thee करूंगा, wholly परंतु तुझे unpunished. किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। Because he is a correcting God for us in our life. हमारा परमेश्वर जो है हमें ठीक ठाक करने वाला, सुधारने वाला And परमेश्वर if है। you know, we have meditated this portion also in the past, Isaiah chapter 43 verse 1. और यशायाह 43:1 के वचन के आधार पर हमने पिछले दिनों में वचन सुना है। Fear not, O thou Jacob, for thou art mine. और हे याकूब मत डर, क्योंकि तू मेरा ही है। He has that authority to correct us, और वो परमेश्वर के पास अधिकार है जो हमें सुधार सके। provided he or she should be his possession. और इतना ही होना चाहिए कि हम उसके निजबाग होना हो जरूरी है। You have to be part and parcel of him. हम उसके होना बहुत जरूरी है। Then only you will be able to experience his way of correction in our life. और उसके सुधार को तब हम अनुभव कर सकते हैं जब हम उसके निज प्रजा, उसके निज धन बन सकते हैं, निज धन बने हैं। You know, Jeremiah was a crying prophet. यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता है। And we see at these times Israel was already going through a lot of sufferings. और यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं कि इजराइल के लोग पहले से ही दुखों में से जा रहे थे। Because they were about to enter into the captivity of Babylon. और वो जैसे कि बाबिलोन के बंदवाई में प्रवेश करने वाले थे। And we know how the Lord is dealing Israel, the people of Israel, through Jeremiah's word. और कैसे परमेश्वर यिर्मयाह के नबी के द्वारा वो इजराइल के लोगों से बातें कर रहा था। It is very different for us to understand. He says at one point, "Fear not," but at the same time he says, "I will not be leaving you unpunished." और एक जगह पे परमेश्वर कहता है इजराइलियों को कि एक जगह पे वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मगर दूसरे जगह पे कहता है मैं तुझे शिक्षा देकर, दंड देकर मैं तुझे सुधारूंगा। But the challenge is open to you and me, so that can we worship the Lord in the times of when we are being corrected by God, or is our anger toward God is increasing because He is correcting us? और ये बहुत ही बड़ा एक प्रकार का हमारे लिए एक प्रकार का आह्वान बोल सकते हैं, या तो एक क्या बोलते हैं इसको, चैलेंज नहीं हिंदी में चैलेंज को, हाँ सवाल, चेतावनी नहीं, हाँ एक चुनौती है कि ऐसा परमेश्वर जो हमें सुधारता है अपने क्रोध के द्वारा, क्या उसकी आराधना करेंगे? We have seen in first instance he is a promise keeping God, how he has used Moses, though he is not that great enough of being eloquent. और मूसा वो परिपूर्ण नहीं था, वो योग्य भी नहीं था, फिर भी कैसे परमेश्वर ने अपने अभिवचन के द्वारा उसने इस्तेमाल किया। He is a promise keeping God. परमेश्वर हमारे अभिवचन को पूरा करने वाला प्रभु है। In Jeremiah chapter 46 verse last verse, यिर्मयाह 46 का 28 वचन में लिखा है, we see that he is a correcting God. अब यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर यहाँ पर दिखाई देता है कि वो हमें सुधारने वाला परमेश्वर है। Why? Because we are his possession. क्योंकि हम उसके निज प्रजा, या तो हम उसके निज धन हैं। You might say Israel was his possession. What about you and me? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इजराइल तो परमेश्वर की प्रजा है, मगर आप और मैं, हम कौन है? We are more privileged. That's what Paul says to the people of Corinthians. You are blood bought people. और यही तो बात पौलुस कुरिन्थियों की मंडली से कहता है कि तुम लहू से खरीदे गए हो। We are more privileged than people of Israel. हम इजराइल के लोगों से भी बढ़कर हैं। But we should not be exalted. That's what Romans. मगर हम ऐसा घमंड ना करें कि हम इजराइल से बढ़कर हैं। That is a different topic altogether. मगर ये अलग सा विषय है। Let's see now in the life of Job. अब याकूब के जीवन से कुछ देखते हैं। Job chapter 19. अय्यूब की किताब 19 अध्याय verse 25. अय्यूब की 26 किताब and 27. अय्यूब की किताब 19 अध्याय 25 वचन। Whoever get it, please read it. अय्यूब की किताब 19 अध्याय 25 वचन।
योब 19 अध्याय 25 वचन। Yeah. Chapter 19, verse 25, 26 and 27. 25, 26 और 27 सब मिलकर पढ़ेंगे। छोटे बच्चे, बड़े, पवित्र शास्त्र को खोलिए, अपने आप को प्रोत्साहन करें, हमारे साथ वचन को पढ़ते रहिए। Let's read it. आइए पढ़ते 25, 26, 27। मुझे For तो I निश्चय know है कि that मेरा my छुड़ाने वाला Redeemer जीवित liveth, है और वह and अंत में that पृथ्वी he पर shall खड़ा होगा stand at the और latter अपनी day खाल के upon इस the प्रकार नष्ट हो जाने And के बाद भी though after my मैं skin शरीर worms में destroy होकर this परमेश्वर का body, दर्शन yet in पाऊंगा। my flesh shall I उसका see दर्शन God, मैं आप whom I अपनी shall आंखों से see अपने for myself and लिए my करूंगा eyes और shall कोई behold, दूसरा नहीं, and यद्यपि not मेरा another, हृदय though my अंदर ही dreams अंदर be चूर consumed चूर भी within me. हो जाए। What a confidence he has in God. कैसा ये अय्यूब है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। Fear not when you see sudden terrors happening. और अचानक आए हुए संकट को देखकर तुम डरो नहीं। The Lord thy God is thy confidence. परमेश्वर यहोवा वो हमारा भरोसा है। We know how Job was being treated and how Job was tested by God. हम देखते हैं कि अय्यूब के साथ उसकी दुर्दशा क्या हुई और किस प्रकार से उसका परीक्षा हुई है And how he was tortured by his friends. और कैसे उसके दोस्तों के द्वारा उसको तकलीफ दिया गया। But yet he says, मगर फिर भी वो कहता है, My Redeemer lives. वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला, He lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And on the later day he will stand on this earth. और वो कहता है कि आने वाले समय में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। Look at the confidence that he has. देखो उस अय्यूब के भरोसे के पास Though देखिए। the skin worms destroy my body, और शरीर का जो ऊपर का जो चमड़ा है पूरा खराब हो चुका है, अब शरीर भी खराब हो जाए, I will see him as he is. मगर फिर भी मैं मेरे प्रभु को देखूंगा जैसा वो है वैसा। Not other eyes, but my eyes will only see him. किसी और की आंखें नहीं मगर मेरी खुद की आंखें देखेगी। What a great confidence that वो he कितना has. बड़ा भरोसा उसको है। Do you and I have that confidence? क्या इस प्रकार का भरोसा आपको है? Can we worship the Lord in that manner? क्या इस प्रकार से आराधना आप कर सकते हैं? Oh Lord, I'm going through these situations in my life, प्रभु मैं इस प्रकार की परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ, but yet through thy word I know that thou hast become my confidence. और इस आपके वचन के द्वारा, हे प्रभु तेरे वचन के द्वारा जो मैं भरोसा पाता हूँ। So far we have meditated on Old Testament. हम पुराने नियम के बातों के ऊपर हमने मनन किए, You and I are in Christ मगर आज हम जो है मसीह यीशु में है after his resurrection. और पुनरुत्थान के बाद। And I always say this is a beautiful thing that one and everyone should believe in this. और मैं हमेशा कहता हूँ ये सुंदर बात है, इसके ऊपर हर एक कोई विश्वास करे। When Thomas was placing his hand to see and believe that he is resurrected, जब प्रभु का शिष्य, प्रभु का चेला थोमा अपने हाथों को प्रभु के हाथों में हाथ डालकर उसके पेट में हाथ डालकर देख रहा था, what did our Lord say to him? तब प्रभु ने क्या कहा उससे? Can anyone answer? क्या कहा बताइए? This should be a little stone in your foundation of your faith. हो सकता है कि इस प्रकार का छोटा पत्थर आपके हृदय में हो, आपके विश्वास के जीवन में हो सकता है। What did he say? What did our Lord say? प्रभु ने क्या कहा? हाँ? छूटने वाले हो धन्य लोग। जो मुझे नहीं देखते फिर भी विश्वास करते वो धन्य है। This is my faith. यही मेरा विश्वास है। Lord, I didn't see you. प्रभु मैं तुझे नहीं देख पाता। Lord, I didn't touch you. प्रभु मैंने तुझे स्पर्श नहीं किया। I cannot see how lovely you are. और मैं ये भी नहीं जानता कि तू कितना प्रेमी है। But I believe in your word. मगर मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। Because you have promised these few words to Thomas that we are blessed. क्योंकि थोमा को अभी वचन दिया हमारे विषय में कि हम नहीं देखते तुझे फिर भी विश्वास करते, इसलिए तुम आशीर्वादित हो। That is what Peter also says in 1 Peter, I think so. इसलिए पहला पत्रस में भी पत्रस कहता है, You have not seen him but you love him. मगर तुमने उसे नहीं देखा फिर भी उससे तुम प्रेम करते हो। He is God, thy confidence. क्या यही प्रभु आपका भरोसा है? Let's in Christ, let's see. मसीह में क्या है वो देखेंगे। Let's read Habakkuk. हबक्कुक की किताब Chapter 1, verse 5. हबक्कुक और उसका 1 अध्याय
Nahum, Habakkuk. Chapter 1, verse 5. हग्गई से पहला है, देखिए हग्गई से पहला सपन्या, सपन्या से पहले हबकुक। हबकुक एक अध्याय, हबकुक एक अध्याय Verse 5. और उसका 5 वचन। Let's read. Behold, ye among the heathen, and regard and wonder, जाति जाति marvelous, के और for चित्त I will लगाकर work a देखो work in your और days, बहुत ही which ye चकित will हो, not believe, क्योंकि though मैं it be तुम्हारे told ही you. दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। What is God saying here? परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? I will do a work. मैं एक काम करता हूँ। Habakkuk is an interesting prophet. और हबकुक एक बहुत ही रुचि रखने वाला एक भविष्यवक्ता He है। is a prophet that he is not able to understand how God is dealing with the sinful nation called Israel. और हबकुक ये नहीं जान पा रहा था कि कैसे परमेश्वर इजराइल के साथ में व्यवहार करेगा। He is not angry as Jonah was, अब योना के जैसा तो वो गुस्सा नहीं हो रहा है, but he was waiting on the Lord. मगर प्रभु पर भरोसा रखकर वो राह देख रहा Though था। all these things are happening around ये differently, सब कुछ बातें हो रही थी। oh Lord, my trust is in thee, हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझी पर है, and I will wait upon thee, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, because you have promised that you will you will do a work that is unimaginable. क्योंकि तूने कहा, तूने अभिवचन दिया है, तू वो काम करेगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। That is what we see in John chapter 1 verse 14. इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन में उस God- बात को देख सकते हैं। God eternal has come in flesh for you and for me. और परमेश्वर जो अनंत काल का है, The वो word- स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर शरीर रूप धारण किया The word became flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी हुआ, वह हमारे बीच में उसने डेरा दिया। He is a promise keeping God, as वो- we have seen वो in Moses. वो परमेश्वर, वो मूसा के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर अपने अभिवचन को पूरा करने वाला। There we see Moses was asked to go deliver the people of Israel, but we see Christ himself has come into this world to deliver us. और हम देख To deliver us. As Moses was asked and called to deliver the people of Israel, we see और- Christ delivering us. मूसा को बुलाया गया, जैसे मूसा को बुलाया गया कि इजराइल लोगों को छुड़ा सके, मगर उसी प्रकार हम यीशु मसीह को देख सकते हैं जो स्वयं हमको छुड़ाने के लिए आया। And in Matthew chapter 14 verse 31, और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 31 वचन, we see how Peter was corrected in the faith. और कैसे पतरस भी उसके विश्वास की सुधार हुई। From Peter's eyes, he was able to see the storms and the troubled sea. पतरस ने आजू बाजू को देखा, उस समंदर में बड़ी लहर आ गई है और तूफान आ गया है, But God was calling him to walk on the sea. मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू उस समंदर पर चलतिया। With confidence, Lord, thou hast been my confidence. I will walk on this troubled sea. और हम देखते हैं कि उसके पास एक भरोसा था, उसने कहा मैं भी इस समंदर पर चलूं। And then, when he was seeing here and there, like we do, he started drowning. और जब वो चल रहा था, मगर चलते चलते उसने आजू बाजू के बातों को देखा और वो अपने भरोसे से टूटकर नीचे गिर गया। But how did God dealt with Peter? मगर कैसे प्रभु उसके साथ में व्यवहार किया? Oh, ye of little faith, why did you doubt? हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? The Lord is our confidence. पर प्रभु हमारा भरोसा है। We have to keep our confidence on Him. हमारा भरोसा उसी के पर हम रखें। And if the Lord has been thy confidence, you can worship Him sincerely. और यदि प्रभु आपका भरोसा है तो बड़े ध्यानपूर्वक और प्रामाणिकता से उसकी आराधना करें। Even if it is unimaginable how things are going in your life, listen to Him. हो सकता है कि आप जो सोचे नहीं उस प्रकार की बातें आपके साथ में होती He रहेगी, is a promise keeping God. मगर प्रभु हमारा वो अभिवचन देकर पूरा He करने is a वाला, prayer answering God. वो प्रार्थना का जवाब देने वाला। At the same time, he is become our position, and we have become His position, so that He can have that authority to correct us. अब प्रभु हमारे ऊपर अधिकार रख सकता है, ऐसे हम उसके बन गए हैं, अब वो हमारा बन गया है ताकि वो हमें सुधार सके। And the last thing,
आखिरी की बात, Romans chapter 15 verse 13. रोमी की पत्री 13 अध्याय, He has become a God of hope. 13 Yes. 13 5 13 Chapter 15 verse 13. 15 अध्याय 13 वचन, रोमी की पत्री 15 अध्याय और उसका 13 वचन। Let's read it all together. रोमी की पत्री 15 अध्याय 13 वचन, आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, Fill you तुम्हें with all विश्वास joy करने and में peace सब in प्रकार के believing, आनंद और that शांति ye से may परिपूर्ण abound in करे hope और through पवित्र the आत्मा power की of the सामर्थ्य से Holy तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Spirit. He is a God of hope. वो हमारा आशा का परमेश्वर है, He didn't leave us orphans. वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, He has purchased us. क्योंकि उसने हमें खरीदा है, He has called us. उसने हमें बुलाया है, He has given His faith toward us. उसने फिर To us. उसने हमें खुद का स्वयं का भरोसा हमें दिया We है। are not that great people that we have to obtain the God eternal. हम उसकी अनंत काल की बातों को प्राप्त करें ऐसे हमारा जीवन नहीं है। There are many people who are wiser than us, और इस संसार में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा who अच्छे are हैं, greatly capable more than what we are. जो हम हैं हमसे भी अच्छे काबिल रखने वाले लोग हैं। That is what Paul says in 1 Corinthians chapter 1. और पहला कुरिन्थी 1 अध्याय में पौलुस यही तो कहता है, If God wants to choose a better one, He would यदि- have chosen a great nation or great people, not even me. यदि परमेश्वर यदि किसी महान व्यक्ति को महान व्यक्ति को या तो महान राष्ट्र को चुनना होता तो वो मुझे नहीं चुनता, But He has chosen you and me. मगर उसने मुझे और आपको चुना है। Unfaithful, अविश्वास unbelieving, और भरोसा न रखने वाले, without any hope, कोई आशा नहीं। being very angered when we are corrected. और जब जब प्रभु हमें सुधारता है तब प्रभु के ऊपर गुस्सा करने वाले, But yet He is a loving Savior. फिर भी वो हमसे प्रेम करने वाला हमारा उद्धार करता है। That's what we can compare in Job's life and in Paul's life as well. और यही अय्यूब के जीवन से और पौल के जीवन से हम देख सकते हैं। Let's read that verse again. इस वचन को वापस पढ़ेंगे। Proverbs नीति वचन chapter 3 3 अध्याय verse 25, 26 and 27. और उसका 25 और 26। Yeah, 26. 25 and 26. नीति वचन 3 अध्याय। पच्चीस और 26, आइए मिलकर पढ़ेंगे। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्तियां पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में से फंसने न देगा। The Lord has become our confidence. परमेश्वर हमारा भरोसा हुआ है, He is our confidence. वो हमारा भरोसा है। Oh Lord, thank Thee for being my confidence. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा भरोसा बन गया। Thank the Lord sending your precious Son और for me on the cross of मैं Calvary. धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए मेरे जगह पर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस क्रूस पर मरने के लिए भेजा। Thanks for keeping Thy promise. मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू अपने अभिवचनों को पूरा करता है। Thanks for correcting me in the journey of my faith. मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जीवन के विश्वास की यात्रा में मुझे तू सुधारता है। Thanks for becoming the hope of my life. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे जीवन की आशा बन गया। As Job says, अय्यूब कहता है, though the skin worms will eat up my flesh, और यदि मेरा शरीर का चमड़ी भी सड़ जाए I will see him as he is in my flesh. और Not मेरा other शरीर eyes, नाश but भी my हो जाए, eyes. फिर भी मेरी आंखों से मैं मेरे प्रभु को देखूंगा। He has become a God of hope. और वही परमेश्वर की आशा बन गया। Will you and I not worship the Lord in sincere heart? और इस प्रकार क्या In हम भी sincerity. प्रामाणिकता से क्या उसकी आराधना नहीं May करेंगे? the Lord guide us in worship. ऐसा करने में प्रभु हमें सहायता करे। सब खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट, सब खड़े हो जाएंगे और संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जाएंगे। आपका आवाज संडे स्कूल टीचर याद रखिए, आपका आवाज, बच्चों का आवाज बाहर ना जाए, बार बार बाहर मत छोड़ो। एक एक बच्चे को छोड़ना है। एक बच्चा चला जाकर आता है, वापिस आता है तो दूसरे को छोड़ना, तब तक नहीं छोड़ना। आइए
गीत नंबर 155, भजन 100, गीत 155। पहला, नमक का महीना।